such great day, since we have amongst us Honorable Shri Banwari Lal Purohit, Governor of Punjab and Administrator of Chandigarh, and I accord a very warm welcome to him for inaugurating Yoga Utsav 2022 countdown program as a prelude to 8th International Day of Yoga, organized by Government College of Yoga Education and Health in collaboration with Morarji Desai National Institute of Yoga, and 100-day initiative by Ministry of Ayush, Government of India, to celebrate the ascent of yoga in 100 cities. And today, we Chandigarhians have gathered here to exhibit our spirit and love for yoga. I would now request all of you to rise for the national anthem. राष्ट्रगान के लिए सावधान होंगे, सावधान। Thank you. Please be seated. Let's begin today's program with the lamp lighting ceremony. May I now request our honorable chief guest to please come and light the auspicious lamp. I request Principal, Government College of Yoga Education and Health, and other dignitaries present here to accompany him. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। Our very honorable His Excellency Shri Banwari Lal Purohit Sir, Governor of Punjab and Administrator of Chandigarh, all dignitaries present on the dais and off the dais, participants and other guests, a very blessed, very pleasant morning
to all of you. On behalf of Ministry of Ayush, Government of India, Morarji Desai Institute of Yoga, and entire Chandigarh administration, I take this opportunity to extend a very genial reception to our revered chief guest, Honorable His Excellency Shri Banwari Lal Purohit ji, Governor of Punjab and Administrator of Chandigarh, who has very humbly consented to inaugurate the Yoga Utsav 2022 and to grace this event with his benign presence. We welcome you, sir. Thank you, sir, for being with us. I also welcome all the distinguished officers of Chandigarh administration who have provided wholehearted support and whose gracious presence has added dynamism to this event. A cordial welcome to all other esteemed guests, participants, media and press. I am glad to share that Chandigarh City and Government College of Yoga Education and Health has been chosen among 100 days, 100 cities, 100 organizations initiative in prelude to International Day of Yoga 2022 by Ministry of Ayush, Government of India. And I am sure that sheer enthusiasm of all of us together will contribute towards making this event a grand success, which is being live streamed on national portal. I welcome one and all. Thank you for coming. Good day. Thank you, ma'am, for your kind words. May I now request Dr. Sapna Nanda to formally welcome our honorable chief guest by presenting a plant pot, which is an insignia of our respect and remembrance. Once again, a very hearty welcome to you, sir. Now, a moment. मुझे लगा गुब्बारे हमें देंगे। So the balloons are being released, which are a symbol that we all should soar higher and higher. विशेष भाषण तो देना नहीं है, आप लोग योगा करने आए हैं। एक बात बताता हूं जो आपको भी प्रभावित करेगी। अखबार में पढ़ा होगा 15-20 दिन पहले, यूपी में एक 125 वर्ष के सज्जन ने बताया था, उनको पूछा 125 के आप हो गए, एकदम आप अभी भी स्वस्थ हैं, अभी भी आप चल रहे हैं, चल के आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यू आर टोटली अलर्ट, हाउ दिस हैज हैपन? उन्होंने कहा मैं 2 काम करता हूँ, एक तो योगा करता हूँ, करता हूं। पॉसिबल नहीं होगा। डर गया ना, वापस आ गया। तो योगा में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका अभिवादन करने उनको
होके मिले थे, उनको नतमस्तक हुए थे प्रधानमंत्री। एवरीथिंग इज पॉसिबल। दो चीजें रखो, एक तो टाइम मैनेजमेंट। खाली आज योगा का यहाँ है इसलिए जल्दी उठ के आ गए, दैट शुड नॉट हैपन। दैट शुड बी अ डेली रूटीन। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। स्कूलों में बताए थे ना, दिस इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मुझे याद है सेकंड क्लास में मैं था, सेकंड क्लास, अभी इवन टुडे आई रिमेम्बर and I follow it up always. And everybody should follow. Everybody should. आज तो इधर योगा क्लास में आ गया तो मेरा मॉर्निंग वॉक रेगुलर है 6 o'clock sharp. When Madam Principal told me that 6 o'clock whether it will be possible, मैंने कहा certainly this is my time, these are my time and there is no problem. I will definitely come. चलिए आप लोगों से मुलाकात हो गई। योगा करिए, रेगुलर करिए, नियम संयम से रहिए, हैं? फिट रहोगे तो बहुत काम आएगा। हेल्थ का बहुत कीमती है। मैं मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट होंगे उनको पहला ऑन द वेरी फर्स्ट डे उनको बताते हैं इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। If health is lost, then definitely something is lost. But last he says that character is lost, then everything is lost. तो अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना है। हेल्थ होगा तो उससे ही अपना कैरेक्टर का फायदा होता है ना। We can maintain that. So health is also equally very important. My best wishes to you and to the principal, all the officers, and best wishes, grand success for this civil, yoga civil, and your teachers. You will follow it up. Huh? And then learn forever. याद हो जाता है और प्रैक्टिस करना है। तो कभी करिए। मेरी बेस्ट विशेष आप सबको है और ये आज ये योगा हमेशा हो घर के रूम में, एयर कंडीशन वाले में रूम में नहीं, हवा आए, रोशनी आए, ऐसे रूम में नहीं तो छत में जाके कर लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिंसिपल को। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम। और आपने बहुत ही उपयोगी बातें कही हैं और जो आपने 125 साल के योगी का वर्णन किया है। स्वामी शिवानंद सरस्वती अभी सुर्खियों में आए थे और इसके साथ ही अब हमारा हेलो नमस्कार, प्रणाम सभी को। मुरझाए से बैठे हो, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। सर के चेहरे पे बैठते ही स्माइल आ गई थी, मैट पे आते ही, और मैट पे आने के बाद तो स्माइल, और यहाँ से उठे तो स्माइल सारा दिन भीतर से खिले। पीठ को सीधा रख के बैठे, जब भी बैठे तन के बैठे आराम से, कभी न बूढ़े बन के बैठे, बिल्कुल सीधा, और आंखें बंद कोमलता से। शरीर पर ध्यान,
शरीर के प्रति सजग, अवेयर, जागरूक। हाथ प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार नमन मुद्रा। एक संघ में हम योग का अभ्यास करें, एक ग्रुप में योग का अभ्यास करें और भीतर हमारे सबके स्वास्थ्य की कामना प्रार्थना हो। प्रोटोकॉल का पहला मंत्र मेरे पीछे दोहराएं। एक बार ओम का उच्चारण, गहरी श्वास भीतर, रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे दोहराएं। संगच्छध्वं संवधध्वं संवो मनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। मन में, हृदय में नमन का भाव, फीलिंग ऑफ गो डाउन। एक बार गहरी श्वास, श्वास छोड़ते हुए हाथ सामान्य अवस्था में। अभी हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, इसके लिए आप खड़े हो जाएं। छोड़ते हुए सेंटर में, बीच में ले आए। गर्दन को साइड में ट्विस्ट करना है, दाईं तरफ, बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, फिर दाईं तरफ। श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए पीछे। एक्सहेल, ट्विस्ट योर नेक। इनहेल, कम टू सेंटर। एक्सहेल, लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, लास्ट राउंड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल रिलैक्स। गर्दन को साइड में बेंड करना, कान कंधे की तरफ। फिर श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड। इनहेल अप, एक्सहेल राइट। इनहेल, exhale left. Try to coordinate with breath. Inhale, exhale right. Inhale up, exhale left. श्वास भरते ऊपर और सेंटर, रिलैक्स। गर्दन को घुमाना है, चक्र बनाना है। गर्दन पीछे ले जाए पहले और सर्कल। पूरा सर्कल। Thank you, sir. Clockwise and anti-clockwise. We are 3 बार। extremely grateful to you for being with us this morning and blessing us with your benign presence. 3 times each side. जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो ध्यान रखें, गर्दन को आगे ना झुकाएं। तीन बार बिल्कुल आराम से श्वास नॉर्मल चलने दें, सामान्य चलने दें। दोनों तरफ हो जाए, हाथ सामान्य स्थिति में सीधे कर दें। चचा का हो गया, चचा गए। अगला अभ्यास कंधों का। श्वास भरते हुए
साइड से ऐसे हाथ ऊपर, हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी, पूरा ऊपर ले जाएं हाथों को, हथेलियां बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे। 2 बार हम दोहराएंगे इसे। इनहेला, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे। लास्ट, श्वास पूरा भरे ऊपर मैक्सिमम। कोशिश करें श्वास के साथ इसका तालमेल बने। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मूवमेंट अच्छे से, खास तौर पे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ऐसे ही फिर आगे की तरफ 5 बार। कोशिश करें आपकी बाजू कानों को टच करके फिर आगे आए। श्वास के साथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे। पांच बार हो जाए फिर थोड़ा विश्राम, हाथ सीधे, गहरी श्वास 2 बार। अगला अभ्यास कमर का। पैर थोड़े खुले, कंधों के बराबर या कंधों से थोड़े से बाहर। कटी का अभ्यास, हल्की ट्विस्टिंग, हाथ सामने दोनों शोल्डर लेवल पे, हथेलियां आमने सामने, और लेफ्ट साइड से पीछे ट्विस्ट कर, अपनी बाईं तरफ से पीछे, आपकी अपनी बाईं तरफ। लेफ्ट हैंड पूरा पीछे जाएगा, राइट हैंड आपके लेफ्ट शोल्डर को टच करेगा। सामने से हाथ टच करेगा शोल्डर को, वापस बीच में, राइट साइड, दाईं तरफ। इनहेल, कम बैक, सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, inhale center, exhale right, inhale center, exhale relax। एक बार गहरी श्वास, घुटनों का अभ्यास। पैर खुले रखें शोल्डर बेल्ट पे और कोशिश करें पंजों में और एड़ियों में इक्वल डिस्टेंस, बराबर फासला हो, वी शेप में ना हो, पैर एच शेप में। श्वास के साथ हाथ सामने सीधे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने बैठ कर दें। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इन घुटनों में बहुत ताकत है, अभी रुके थोड़ा यहीं पे, थोड़ा ताकत आजमाते। 5 4, थोड़ा या थल्ले हो, 3, एक दिन आड़िक फ्री, 2 and 1। इनहेल अप, रिलैक्स, एक्सहेल डाउन, गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास बाहर। कोशिश करें जब भी श्वास को गहरा करें, ध्यान श्वास के प्रति हो, नाभि के प्रति हो, श्वास की गहराई का आभास हो, सजग हो श्वास के प्रति। आसनों का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अभी हम पहला आसन है ताड़ासन, पैर मिला दें, और अगर किसी से पैर मिला के ना हो तो पैर खोल के भी कर सकते हैं, बट कोशिश करें पैर मिला दें। फिंगर सेंटर लॉक, उंगलियां आपस में लॉक करें, हथेलियां बाहर की तरफ, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ दें यहाँ पे, फिर श्वास लें और एड़ियां उठा दें, श्वास नॉर्मल चलने,
5, 4, 3, 2, 1, इनहेल, एड़ियाँ नीचे, फिर साइड से हाथ नीचे, श्वास छोड़ते हैं। एक बार इनहेल आप, एक्सेल, फिर श्वास लें और एड़ियाँ ऊपर। सामने एक पॉइंट पे देखें, ताड़ासन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, और बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। कंसंट्रेशन पावर इससे इंक्रीज होती है। जब तक खड़े हैं हमारा ध्यान पंजों में रहेगा, माइंड बाहर नहीं जाएगा। गहरी श्वास भीतर, एड़ियाँ नीचे, श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे। इतने संतुलन के आसन है, सारे कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करते हैं। अगला आसन वृक्षासन। इसमें कोशिश करना बैलेंस बने तो हाथ ऊपर लेके जाना, राइट लेग पे सारा वेट और लेफ्ट लेग को उठाइए आराम से। लेफ्ट पैर का तलवा, बाएं पैर का तलवा दाईं जंघा के अंदर की तरफ। प्लेस योर लेफ्ट फुट, लेफ्ट सोल अंडर इनर थाई, राइट थाई। अब यहाँ पे हाथ रोको एक बार आराम से, फिर धीरे धीरे सामने देखते हुए एक पॉइंट पे, फिर ऊपर लेके जाओ। अगर किसी से नहीं हो रहा तो सिर्फ हाथ ऊपर कर लो, तो सामने से ऐसे लगेगा जैसे वृक्षासन ही कर रहे हो। तो हाथ ऊपर सभी के। 5, 4, 3, 2, 1, साइड से हाथ नीचे, फिर पैर नीचे। ऐसे दूसरी तरफ, राइट लेग को उठाएं आराम से और बाईं थाई के अंदर पेल्विक के सेंटर में, हाथ साइड में, धीरे धीरे ऊपर। श्वास नॉर्मल चलने दें। सामने एक पॉइंट पे देखेंगे तो नहीं गिरेंगे, आंखें एक पॉइंट पे टिकी हों। अब ढूंढो अपना मन कहाँ है, आपको अपने पैर में मिलेगा मन। ये बस 5 गिने फटाफट और वापिस आ जाए और बस आज का काम हो जाए। 1, 2, 3, 4, 4.5, quarter to 5, slowly down and relax। गहरी श्वास, अगला अभ्यास है पादहस्तासन। जिनको बैक पेन हो वो थोड़े घुटने बेंड कर लेना। इसमें श्वास के साथ साइड से हाथ ऊपर जाने दें, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तान दें अच्छे से और श्वास छोड़ते हुए बैक को पूरा लेंथन करें सामने एंड स्लोली डाउन, पूरा नीचे चले जाएं। कोशिश करें आपके हाथ हथेलियां अपने चरणों के पास साइड में स्पर्श हो। ट्राई टू टच योर फीट और यू मे प्लेस योर पाम्स बिसाइड योर फीट। जिनको बैक एक है सिर्फ वो घुटने बेंड करें, बाकी सभी घुटने सीधे रखें। थोड़ा सा और नहीं, अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बम्पर बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं, वो भी कम हो जाएगा। श्वास भरते हुए सामने से जैसे गए थे वैसे वापस, हाथ ऊपर, बिल्कुल सीधा, पूरा श्वास भीतर और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। हाथ कमर पे, पैर थोड़े खोल, श्वास भर ले यहीं पर और जैसे जैसे पीछे जाए श्वास छोड़ते जाए। बैक बैंड, श्वास भरते वापस, यहीं पे श्वास छोड़ दे। अब श्वास की गति को उल्टा करना है, श्वास भरते हुए पीछे जाना है। इनहेल, श्वास भरते जाएं पीछे पीछे पीछे, मैक्सिमम पीछे चले जाओ। जब पूरे पीछे चले जाओ फिर वहां जाके श्वास छोड़ दो, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दिया आसमान। वापस
श्वास छोड़ दें एंड रिलैक्स। हाथ ढीले, गहरी श्वास। नेक्स्ट आसन इज त्रिकोण आसन। तो अपने मैट के ऊपर आप ऐसे लंबे इस तरह से फैल, राइट साइड फेस कर लो सारे, राइट साइड, इधर 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 राइट, इस तरफ। अपना राइट फुट आपका उस तरफ हो पीछे। हाँ गुड। थोड़ा सिमेट्री में करेंगे तो और सुंदर लगेगा। जो पीछे वाले हैं वो राइट फुट इधर रखना। हाँ गुड। राइट फुट बाहर करो, राइट पंजा, दायां पंजा बाहर करो। मैं नहीं बोल रहे, माइक बोल रहे। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, पैर खोल दें, 1 से 1.5 फीट पैर खुले हों और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड नीचे चले जाओ। राइट हैंड टच करो एंकल के पास नीचे, या एंकल पे या अपनी हथेली टच करो नीचे। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखना है। कोशिश करें दोनों कंधे, हाथ, छाती एक लाइन में हो। बहुत अच्छे लग रहे हो, बस फोटो खींच जाने दो, फिर वापस करता हूं। अरे ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि आसन ही कराए जाऊंगा। श्वास भरते ऊपर। अभी हाथ यहीं पे रखने, राइट फुट को अंदर कर दो, लेफ्ट बाहर। श्वास छोड़ते हो नीचे, लेफ्ट साइड। वेरी गुड, अति उत्तम। 5 4 3 2 1। Inhale up, exhale, relax. अब बैठ जाए, बटरफ्लाई पोस्चर में बैठ। इन आसनों का अभ्यास, एक आसन अगर हम 3-3 बार करें, कम से कम 3 से 5, तब इसका और अधिक लाभ होता है। प्रोटोकॉल का पार्ट है, इसलिए हम एक बार ही इसको रिपीट कर रहे हैं। अभी बटरफ्लाई में थोड़ी सी मूवमेंट कर लो, हल्का हल्का, बस ज्यादा जोर से नहीं करना है, क्योंकि तितली आसन है तो हो सकता है पंख भी उठ भी सकते हो। तो थोड़ा सा कोशिश करो कि घुटने आपके टच होने से, पीठ थोड़ी सीधी हो और चेहरे पे स्माइल, मुस्कुराहट हो। ऐसा ना लगे कि चेहरा ऐसे लगे कि बस तितली बन के उठो। तितली उड़ती है तो कितनी खुश होती है, और हम भी उसको देख के खुश होते हैं। लेकिन ऐसे फेस दूसरे को लगे कि आसन कर रहे हैं कि आसन मार रहा है। तो हमने आसन करना है और आसन सहज हो। तो थोड़ा सा दबा के रखो नीचे घुटने, पीठ को थोड़ा सीधा, यहाँ पे रोको बस। 3 श्वास यहाँ पर। भद्रासन। रिलैक्स। अगला आसन, ये आसन हिप जॉइंट के लिए, खासतौर पे जिनको लंबर रीजन में प्रॉब्लम हो, लोअर बैक पेन हो, उनके लिए अच्छा है। वज्रासन। वज्रासन इज बेनिफिशियल फॉर योर डाइजेशन। खाने के बाद या रात को सोने से पहले से जरूर करें 2-3 मिनट, और उसका लाभ आप 2-4 दिन के बाद ही पता लग जाएगा कितना लाभ है। वज्रासन इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन। और खाने के बाद एकमात्र ऐसा आसन है जो हम कर सकते हैं तुरंत बाद। खाना जहाँ 3 घंटे में डाइजेस्ट होता है, वहाँ 2.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकली करके देखना। मेरी आवाज भी मोर की आवाज में मिक्स हो गई। अगला आसन अर्ध उष्ट्रासन। तो नी स्टैंड में आ जाओ, घुटनों के बल खड़े हो, घुटने थोड़े खुले, और पैरों के पंजे अंदर की तरफ कर सकते हो आप एक बार, जिससे आराम से हो। फिर पंजे पीछे निकाल देना, नहीं तो पंजे अंदर रखना। हाथ कमर पे, और धीरे धीरे जैसे खड़े खड़े बैक बेंड की थी, ठीक वैसे ही ऐसे ही घुटनों के बल बैक बेंड कर दो पीछे।
सिद्ध अर्ध उष्ट्रासन, एल्बोज थोड़ी पीछे, गर्दन पीछे ड्रॉप कर दो, मतलब गर्दन पूरी ड्रॉप नहीं कर देनी, साथ में रखनी है, कंधों के लगा के वापस। फिर से अब जो पीछे निकाल सको पंजे, वो पंजों को पीछे कर दो, टोज बैक, मैक्सिमम बैंड, पीछे पीछे पीछे। दायां हाथ दाएं एड़ी पे रख दो, बायां हाथ बाईं एड़ी पे रख दो, जो रख सको, नहीं रख सको तो हाथ कमर पे रखो। अगर एड़ियों पे हाथ नहीं रखे जाते हैं तो हाथ कमर पे रखो। धीरे से वापस एक एक हाथ करके ले आओ आराम से। अब इसको लास्ट टाइम करेंगे। अब इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो, ऐसे हाथ पीछे ले जाओ, राइट, फिर लेफ्ट, और फिर पेल्विक को पुश करो आगे, बैक को पूरा पुश कर दो। एड़ियां पंजे जो मिला सके मिला लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अपने घुटनों का ख्याल रखना है, यही आपको उठा के लेके जाएंगे यहाँ से। धीरे से वापस, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही हाथ रिलैक्स। इसका काउंटर योगासन में एक बार लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें तो राइट, बैक बेंडिंग करें तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करें तो बैक। तो शशांक आसन, मैट के पिछले कॉर्नर पे हो जाओ, घुटने खोल दो, नीज अपार्ट, एड़ियां खुली, पैरों के अंगूठे मिले हुए और माथा जमीन पे लग जाए। पैरों के बीच में रखो हाथ और आगे की तरफ खिसका दो हाथों को। वेरी गुड। नाभि पर ध्यान, बिकम अवेयर ऑफ योर नेवल, अपने आप चल रही श्वास। एक बार गहरी श्वास नेवल पर ध्यान रखते हुए घुटने खुले ही रखने हैं। फिर से बैठे, घुटने खुले रहेंगे। उत्तान मणिकासन, कोई ना, मैं आता हूं। श्वास पर ध्यान, फेफड़ों के फैलाव को महसूस करें। फील द एक्सपेंशन ऑफ योर लंग्स, फील द मूवमेंट ऑफ योर नेवल। और एक बार अच्छे से गहरी श्वास भीतर, श्वास बाहर, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, सीधे बिल्कुल दोनों हाथ, श्वास छोड़ते हुए साइड से नीचे, एंड रिलैक्स। दोनों पैर सीधे दंडासन में। वक्रासन, राइट नी फोल्ड कर लें, दायां घुटना मोड़ लें और दाईं तरफ से ही बॉडी को पीछे ट्विस्ट करें। दायां हाथ पीछे रखें, राइट हैंड पीछे रखो, लेफ्ट हैंड से राइट फुट को ग्रिप करो। गुड। कंधे पीछे घुमा दो। कोशिश करो आपका हाथ घुटने के ऊपर से हो, और अगर पंजा या एंकल नहीं पकड़ा जा रहा हो तो आप अपना घुटना पकड़ के रख सकते हैं हाथ से। घुटने को अंदर की तरफ खींचना, थोड़ा प्रेस करना, आपका पेट प्रेस हो, कंधे पीछे ट्विस्ट हो, लीवर पे थोड़ा प्रेशर आए, पैनक्रिया पे, पेट पे, लंग्स पे। कंधे घुमाओ, पेट अपने आप दबेगा, सिर्फ कंधे घुमाने की कोशिश करो। धीरे से वापस साइड चेंज, राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट फोल्ड और लेफ्ट साइड ट्विस्ट। लेफ्ट नी फोल्ड कर लो, लेफ्ट साइड ही ट्विस्ट करो। दाएं हाथ से बाएं पैर का पंजा, ग्रिप योर लेफ्ट टो विद राइट हैंड and twist your body maximum. This asana is beneficial
और डायबिटिक पेशेंट, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, फैटी लीवर हो, किडनी स्टोन हो, ट्विस्टिंग पोस्चर जितनी है वो पूरा डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन के लिए, स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन इम्बैलेंस जिनको हो उनके लिए बेनिफिशियल है। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। थोड़ा सा विश्राम, पैर खोल दो, हाथ पीछे रखो, गर्दन थोड़ी ऊपर, आसमान की तरफ ध्यान। एक गहरी श्वास आसमान में देखते हुए भरो अच्छे से, और धीरे धीरे इतना गहरा छोड़ो श्वास को कि पेट पूरा अंदर जाए, नाभि कंट्रैक्ट हो, नेवल भीतर जाए, ऊर्जा केंद्र पे हमारा ध्यान हो, नाभि पे ध्यान हो। और पेट के बल लेट जाए मकर आसन में। चेहरा इधर कर ले सामने की तरफ। हाँ, अब आराम मिला ना, ये ठीक है। एक हाथ पे दूसरा हाथ रखें, उस पे माथा या ठोड़ी। गहरी श्वास। मकर आसन में पैर खुले हो, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, और पीछे वाले ने ध्यान रखना है कि सामने वाले जो पड़ोसी है उसके पैर में गुदगुदी नहीं करती। ठीक है, एक दो कर रहे हैं शरारते, तो मैं बता देता हूं पहले। क्योंकि पड़ोसी में बचपना आ गया तो फिर आपके चेहरे का क्या होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। पहला आसन भुजंग आसन, पैर खुले, पंजे पीछे, पैर थोड़े खुले रखो, चाहे टोज बैक कर दो, हाथ कंधों के नीचे, हैंड्स अंडर शोल्डर, एल्बोज क्लोज विद द चेस्ट, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए छाती को हल्का सा ऊपर उठाओ, अर्धभुजंग, थोड़ा सा ऊपर, बस थोड़ा सा, धीरे से वापस। एल्बोज चेस्ट के साथ लगेंगे, ध्यान रखना। थोड़े से हाथ और पीछे कर लें, कंधों के लेवल पे, उंगलियां कंधों से आगे ना हो। इनहेल अप, मैक्सिमम ऊपर 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 ऊपर, धीरे से वापस। बस एक बार और करेंगे, जितना आप ऊपर आ सके। इनहेल अप, मैक्सिमम गर्दन पीछे की तरफ, श्वास नॉर्मल। 5 4 3 2 1, कम बैक। हाथ दोनों पीछे ले जाएं, थाइस के नीचे, अंडर थाइस एंड फीट टुगेदर, पैर मिला दें। देवी जी वीडियो बहुत सारी बन रही है, आप आसन कर लीजिए, थोड़ा बम्पर कम हो जाए। अर्ध शलवासन में राइट लेग धीरे से ऊपर उठा दो, सीधा, and it's very beneficial for lower back, strengthen your back muscle। झूले ले रहे हो, आप भी करो। धीरे से वापस, लेफ्ट, धीरे से वापस, दोनों पैर एक साथ। अब शलवासन, उठा दो ऊपर, सीढ़ियों वालों के तो पैर दिख ही नहीं रहे। धीरे से वापस, एक बार और, इनहेल अप, मैक्सिमम ऊपर दिख जाए बस आपके पैर मेरे को। स्लोली डाउन एंड मकर आसन में रिलैक्स। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, थोड़ा विश्राम, आंखें बंद, गहरी श्वास। एक बार गहरी श्वास अच्छे से, और करवट लेकर शवासन में लेट जाइए। बस 2 आसन और रह गए।
अभी सबको ये होता है कि योग करने से ना बम्पर कम होता है, पेट कम होता है। थोड़ा सा अभ्यास करके देखते हैं कि वाकई कम होता है। शवासन में पैर खुले, हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियां आसमान की तरफ। गहरी श्वास 2 बार। नवनीत शवासन भाई, हमारे योग इंस्ट्रक्टर का ये हाल है, बाकियों का क्या हाल होगा। चौकड़ी मार के बैठे हैं। मनदीप, हरचरण मार्गदर्शक हैं आप। एक बार अच्छे से गहरी श्वास नाभि पर ध्यान रखते हुए दोनों पैर मिला दें, फीट टुगेदर, और हाथ पेल्विक के नीचे, नितंबों के नीचे, हथेलियां नीचे की तरफ। आज हम पेट कम करके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो दोनों पैर एक साथ उठाओ, उत्तान पाद आसन 45 डिग्री एंगल तक, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 पे नहीं, 45 डिग्री पे, यानी कि 1-1.5 फीट ऊपर। बस यहाँ रोक के रखो थोड़ा सा। 5 4, थोड़ा जा उत्ते हो, 3, तुसी हो जाओगे फैट फ्री, 2, वो कर ले तू, वेरी गुड। थोड़ा ऊपर आ सकता और वैसे फैट, वाह बहुत बढ़िया, वापस रिलैक्स। लग रहा है ना इससे हो जाएगा कम। चलो फिर से उठा दो। अब 90 डिग्री पे अर्ध हलासन, दोनों पैर 90 डिग्री के कोण पे। जिनको बैक पेन हो वो थोड़े नीज बेंड कर सकते हैं। स्टे, पंजे अंदर की तरफ खींचो, थोड़े से टोज अंदर। हाथों की सपोर्ट लेने से बम्पर कम नहीं होगा। दिस आसन इज ऑल्सो कॉल्ड पनीर पराठा आसन। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। अभी दोनों नीज फोल्ड कर लो अच्छे से, एड़ियां नीचे रखो और एंकल्स ग्रिप करो अपने। ग्रिप योर एंकल्स। कंधार आसन, सेतु बंद आसन। इनहेल अप, लोअर बैक बटक रीजन को उठा दो मैक्सिमम ऊपर। चिन लॉक लगे। दिस आसन इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर हाइपो एंड हाइपरथायराइड। तो चिन लॉक लगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो ज्यादा ऊपर मत उठाना, धीरे से वापस। वेरी गुड, अति सुंदर। इनहेल अप। पीछे 1-2 भाई बंधु बैठे हैं, आगे मैट खाली है, वहां आ सकते हैं। धीरे से वापस। लास्ट टाइम इनहेल अप। श्वास के साथ ऊपर, थोड़ा सा रुके यहाँ पे, श्वास चलने दें। नाभि पे ध्यान, थर्ड रीजन गर्दन पे ध्यान। सजग। 5 4, आभास हो, महसूस हो श्वास का। 3 2 1, कम बैक। बैक नीचे और घुटने फोल्ड ही रखें। पवन मुक्त आसन में चले जाएं। घुटनों को छाती की तरफ खींचें। फिंगर्स इंटरलॉक करके पकड़ सके तो अच्छी बात, नहीं पकड़ सकते तो एक एक घुटने को पकड़ लें। फिर भी घुटने नहीं हाथ में आ रहे तो थाई के नीचे से, काफ और हैमस्ट्रिंग के बीच में से आप पकड़ सकते हैं। ये उनके लिए है जिनके बम्पर थोड़े अमीर है। अपनी अमीरी को आपने बचा के रखना है, और ऐसा भी ध्यान रखना है कि वाइट कोट वाले के पास ना जाए वो अमीरी। धीरे से गर्दन नीचे, पैर सीधे कर। शवासन। अभी आप शवासन में विश्राम करेंगे। आपके पास रिफ्रेशमेंट रखी जा रही है तो आपने ध्यान नहीं देना उस पर। शवासन में पैर खुले,
हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियां आसमान की तरफ। आसनों का अभ्यास हमारा खत्म। अभी हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे और फिर 100 प्राणायाम और फिर सेशन की समाप्ति होगी। तो 1-2 मिनट के लिए कंप्लीट शवासन, बिना किसी हरकत, बिना किसी हलचल। दोनों पैरों में फासला हो 1 से 1.5 फीट का, हाथ शरीर से थोड़े दूर, हथेलियां आसमान की तरफ। और थोड़ी देर के लिए सजग हो जाएं अपनी श्वास के प्रति। श्वास के प्रति सजग, इतने होश से भर जाएं कि सिर्फ श्वास ही दिखाई दे। श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। जो रिफ्रेशमेंट बांट रहे हैं प्लीज आवाज नहीं करें। सजग, अवेयर, श्वास भीतर आई, श्वास बाहर गई। और बड़ा प्राकृतिक प्रोसेस है, श्वास अपने आप चल रही है। शवासन में अगर बातें हों शव अर्थात एक मृत शरीर जिसमें कोई हलचल नहीं, और जो मृत शरीर में बात करे उसे क्या कहेंगे? धीरे धीरे नाभि पर ध्यान, संपूर्ण रूप से सजग, संपूर्ण रूप से होश से भरे हुए, बिल्कुल जागृत अवस्था में मन श्वास की इस गति को देखें। न श्वास तेज करें न धीरे करें। संपूर्ण विश्राम। शारीरिक व्यायाम तो हम करते हैं, विश्राम की ही उतनी ही आवश्यकता है हमारी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, प्राणिक शक्ति को फिर से ग्रहण करने के लिए। मन में जितना तनाव हो, कोई टेंशन हो, एंजाइटी हो, कुछ भी मानसिक विचार चल रहे हों, तो शव आसन में अगर श्वास का अभ्यास हम करें, श्वास को देखें, सजग हों, अवेयर हों, तो धीरे धीरे देखेंगे कुछ ही दिनों में वो तनाव, वो परेशानी शरीर से और मन से बाहर जाने लगेगी। लेकिन इसका अभ्यास रोज अगर आप 5 मिनट करें तो आपको बहुत लाभ देगा। शवासन, मरने की कला आती है, आर्ट ऑफ डाइंग। अगर हम ठीक से मरना सीख लें तो जीना बहुत उत्तम हो जाएगा। श्वास के प्रति सजग रहते हुए धीरे धीरे श्वास को गहरा करें और 2 बार दोहराएं। गहरी श्वास
कोशिश करनी है कि संपूर्ण रूप से सजग हों, अवेयर रहें शरीर के प्रति। आंखें बंद रखते हुए आराम से करवट लेके बैठ जाएं। किसी भी ध्यान के आसन में, किसी भी आराम के आसन में आंखें बंद ही रखें। दोनों हाथ घुटनों पर, पहली उंगली हल्की सी मुड़ी हुई ज्ञान मुद्रा में, हथेलियां ऊपर की तरफ, कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई, एल्बो स्लाइटली बेंड ताकि कंधों पे तनाव ना हो। पीठ को सीधा रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए ध्यान श्वास के प्रति। श्वास सामान्य चलने दें, नेचुरल ब्रेथ, नॉर्मल ब्रेथ। षटक्रिया कपालभाति का अभ्यास 30 से 60 बार अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को बाहर फेंकना है। एक लय में, एक रिदम में, एक्सेल विद फोर्स इन फ्लो। ध्यान अपनी श्वास पर। आंखें हमारे मन का कैमरा है, डोर है, एक ऐसा डोर जहाँ से चित्र छपते अंदर। तो जैसे आंखें खुली, ध्यान दूसरे पे गया, तो कपालभाति का या किसी भी प्राणायाम का लाभ हमें नहीं, जिस पड़ोसी की तरफ देख रहे हो उसको होगा। ध्यान अपनी श्वास पर, अपने भीतर जाने का रास्ता है कपालभाति। कपाल अर्थात हमारा स्कल रीजन, इसकी क्लींजिंग, इसकी सफाई, चाहे मन के विकार हों या शरीर के। और जब एक्सहेल करते हैं तो एयर का प्रेशर हमारे ब्रेन पे, स्कल रीजन पे हिट करता है। इट्स बेनिफिशियल फॉर रिलैक्सेशन एंड इंटेलिजेंस। इससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। रिलैक्स, गहरी श्वास भीतर। श्वास लेने के बाद हल्का सा श्वास को रोकें 1-2 सेकंड, और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर। फिर श्वास लें, श्वास को थोड़ा रोकें, धीरे धीरे श्वास नाक से बाहर। श्वास नॉर्मल। एक राउंड और कपालभाति का लास्ट। इसको 60-70 बार कोशिश करें। थोड़ा सा तेज कर सकते हैं अगर जो कर सके। कंटिन्यू। अगर कोई तेज नहीं कर सकता तो थोड़ा धीरे कर सकते हैं। किसी को बीपी हाई हो तो वो नॉर्मल स्टॉप पे चलने दे, तेज ना करें। चाहे 60-70 बार, ज़्यादा भी कर सकते हैं, 100 तक। विशेष ध्यान रखें, जब श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। श्वास छोड़ने के साथ पेट अंदर जाए।
ऑल रिलैक्स। इनहेल डीप, गहरी श्वास भीतर, श्वास को रोक लें हल्का सा, 1-2 सेकंड का पॉज और धीरे धीरे श्वास बाहर। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर भीतर, 2 बार और गहरी श्वास विद रिटेंशन। श्वास रोकें छोड़ें, श्वास लें रोकें छोड़ें, ऐसे 2 बार और। श्वास रोकते ही मन श्वास के साथ जुड़ता है, बिना मन के यहाँ आए श्वास रुकेगी ही नहीं। अंतः कुंभक, सजग हो, सजगता की तरफ रिटेंशन लेके जाती है हमें, अंतः कुंभक लेके जाता है। और जितने हम सजग होंगे, अवेयर होंगे, मन शांत रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, आनंदित होगा जीवन। एक बार गहरी श्वास बिना रुके। ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रेथ, अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड यूज करें नाक को पकड़ने के लिए, दाई नासिका बंद करें, बाईं से श्वास भीतर। इनहेल थ्रू लेफ्ट, क्लोज योर राइट नोस्ट्रल। बाईं को बंद करके दाईं से श्वास बाहर, क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल एंड एक्सहेल थ्रू राइट नोस्ट्रल। फिर राइट से श्वास भीतर, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। इसके 6 राउंड, 6 सर्कल पूरे करें अपनी श्वास के अनुसार, श्वास की गति के अनुसार। श्वास लेने के बाद हल्का सा श्वास रोक सकते हैं। जैसे ही श्वास रोकेंगे ये प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम बन जाएगा। इट विल क्लीन नाड़ी, ब्लॉकेज ऑफ योर नाड़ी, नाड़ियों की शुद्धि होती है इसे करने से। लास्ट 5 मिनट, 5 मिनट में सेशन समाप्त होगा। तो जो लोग जो जा रहे हैं प्लीज वो रुकते हैं 5 मिनट और। जब लास्ट राउंड कंप्लीट करें तो लेफ्ट साइड एक्सहेल करके फिर आपने रिलैक्स करना है। जैसे ही आपका 6th राउंड कंप्लीट हो, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करना है और फिर रिलैक्स। जिनके 6 राउंड हो जाएं वो हाथ दोनों गोद में रख लें। श्वास को गहरा चलने दें, पीठ सीधी हो। और शीतली या शीतकारी प्राणायाम दोनों में से एक करेंगे 5 राउंड। शीतली में आपने टंग को रोल करना है, जीभ को रोल करना है बाहर निकाल के। जीभ के बीच में से श्वास लेना है, मुंह बंद और श्वास नाक से बाहर। इसे 3 से 4 बार दोहराएं। भीतर ठंडक का आभास। एक बार और शीतली। कुछ लोगों की जीभ रोल नहीं होती जीभ की मोटाई के कारण, तो उनके लिए शीतकारी बाकी भी कर सकते हैं। पूरे होंठ खोलकर जैसे हम ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं, वैसे श्वास लेना है। दांत पूरे सामने से दिखाई दे। फिर श्वास भीतर, मुंह से, मुंह बंद और नाक से श्वास बाहर। दांत मिलाकर अच्छे से श्वास भीतर, दांत पूरे मिले हों, जुड़े हों। फिर श्वास भीतर ले जाएं,
धीरे धीरे चेहरा भीतर से ठंडा होता जाएगा। खासतौर पे जिनका बीपी हाई रहता हो उनके लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम है। अभी आपका चेहरा ठंडा हो जाएगा 5-7 बार करने से। तो शीतकारी प्राणायाम, लास्ट राउंड शीतकारी का। गहरी सांस भीतर मुंह से, मुंह बंद, ठंडक का आभास। गहरी सांस चलने दें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ठंडक के बाद ट्रैंक्विलाइज प्राणायाम, बैलेंस, संतुलन में लेके आते हैं जो, और जो जहाँ से अध्यात्म का मार्ग शुरू होता है। तो एक बार उस कंपन का आभास करने के लिए आप दोनों हाथ सिर पे रखें। राइट हैंड ऊपर रखें सिर के ऊपर, और फिर बायां हाथ उसके ऊपर। पहले राइट फिर लेफ्ट, सिर के ऊपर बिल्कुल टॉप पे रखें। तो आपको सिर के अंदर कंपन का आभास हो। तो गहरी श्वास भीतर, और 2 बार हमिंग करेंगे। ओनली 2 टाइम। इनहेल दी, आवाज और थोड़ी गूंजे। एक बार और। यही कंपन 2 बार और कान बंद करके सन्मुखी मुद्रा में अंगूठों से कान बंद कर लें, और 2 बार। हाथ कोमलता से गोद में रख लें भैरव मुद्रा में। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। शरीर के भीतर जो कुछ हो रहा है इस समय उस पर ध्यान। मस्तिष्क में जो कंपन पैदा हुई उसके प्रति सजग। बिकम अवेयर ऑफ योर वाइब्रेशन दैट यू हैव क्रिएटेड in your head region, throat, chest. सिर में, गले में, छाती में जो कंपन मकार से एक्टिव हुई उसके प्रति सजग हूँ। और सिर से लेकर ये ऊर्जा पूरे शरीर में फैले, ऐसा आभास हो। ये कंपन शरीर के सारे विकार, सारी बीमारियां, मन के विचार धीरे 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 खत्म करती है अगर हम निरंतर इसका अभ्यास करें, रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करें। शरीर के भीतर की जो ऊर्जा
सक्रिय हुई वो शरीर को स्वस्थ रखे, मन को शांत रखे, ऐसा भाव हमारे भीतर हो। और हाथ धीरे से प्रणाम मुद्रा में ले आए, नमस्कार नमन मुद्रा में। ये स्वास्थ्य का भाव, मन की शांति का भाव, स्वयं के लिए मेरा शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, जीवन संतुलित हो, आनंदित हो। और यही स्वास्थ्य, यही आनंद मैं सबके साथ बांटूं, सभी स्वस्थ हों, सभी आनंदित हों, सबका कल्याण हो, सबका मन प्रसन्न चित्त हो, ऐसा भाव हमारे भीतर हो। और इसी कामना, इसी प्रेयर के साथ शांति पाठ मेरे पीछे दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। एक बार गहरी शांत श्वास भीतर, धीरे धीरे श्वास बाहर। 1 मिनट के लिए धन्यवाद का भाव मन में, हृदय में थैंक्स का भाव हो, ग्रेटिट्यूड का भाव हो, उस प्रकृति का धन्यवाद जिसमें हम श्वास ले रहे हैं, जिस स्थान पे हम बैठे हैं रॉक गार्डन में, इस पूरे प्रांगण का धन्यवाद। और जिस भी माध्यम से हम यहाँ आए उन सब का धन्यवाद। जीवन में जो भी, जिससे भी, जो भी हमारे स्वास्थ्य के पक्ष में सहायता हो, उन सभी जनों का मन से, हृदय से धन्यवाद करें, शुक्राना करें। और जैसे जैसे हम धन्यवाद के भाव से भरते हैं, हम और शांत और रिलैक्स और आराम से होते जाते हैं। Thanks for each and every moment to the nature, to Almighty and Palming। हथेलियाँ रगड़ लें आपस में अच्छे से, थोड़ी ऊष्मा पैदा होने दें, हीट क्रिएट होने दें। फिर आंखों पे रखें हथेलियाँ, 2-3 बार आंखें खोलें, बंद करें, आंखें खोलें, बंद करें। आराम से आंखों की, चेहरे की मसाज करते करते अपना समय लें, आंखें खोल लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2 मिनट और रुके। और मैं अब इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे साथ यहाँ पर हैं हमारे आदरणीय मैडम हरमनजीत कौर जी। उनको मैम को मैं इनवाइट करता हूँ। हरगुणजीत कौर जी, स्पेशल सेक्रेटरी टूरिज़्म, हमारे बीच में हैं और मैम ने हमारे साथ पूरा प्रोटोकॉल किया है। तो आइए मैम को हम इनवाइट करते हैं गिफ्ट हैम्पर के लिए। और इसके साथ ही हरियाणा योग आयोग से जयदीप आर्य जी हमारे साथ आए थे और किसी कार्यवश उन्हें जाना पड़ा। और
रजिस्ट्रार श्री डॉक्टर हरीश जी हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें भी निवेदन करूंगा वे भी आएँ। तो मैम के लिए ज़ोरदार तालियां। और ये गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे हैं हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं आज के, औरिका स्पाइसेस। देखिए स्पाइसेस के लिए कहते हैं अंग्रेज भारत आए थे, तो स्पाइसेस बहुत हमारे जीवन को स्पाइसी बना देते हैं। तो और इसके अलावा पंजाबी रनर्स टॉर्नेडो हमारे आज के स्पॉन्सर्स हैं, तो ये गिफ्ट हैम्पर्स प्रदान कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं हरीश सर को हरियाणा योग आयोग के बहुत ही कर्मठ रजिस्ट्रार श्री डॉक्टर हरीश जी हमारे बीच में हैं, तो उनके लिए भी गिफ्ट हैम्पर है। और एक बार जोरदार तालियां। और आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आजकल सेल्फी का ज़माना है। देखिए योग भी सेल्फी लेने की बात करता है, पर सेल्फी अपनी अंतरात्मा के साथ, अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की बात करता है, सिर्फ शरीर के साथ नहीं। तो आपके लिए स्पेशली सेल्फी स्टैंड अरेंज किया गया है। ये सेल्फी